So we have started a new topic, a new chapter known as dynamic arrays. In C++, dynamic arrays implementation is done by the use of vectors. Vectors are nothing but an object of some particular class. Okay? And in Java, they are also known as array list. Basically, vectors and array list are almost the same. Basic functionalities have been changed. Here you can access the arrays through the indices. There you can't. There you can use the pop-up. There you have something else. Here you can, like, if you want to add the elements into your vector, you have like basic, like you have push, you have pop. These are the basic functionalities that have been already written. The names only change in array. There you have add. There you have remove. So names only change. All other things remain the same. And if somebody wants to implement whatever we have learned in C++, then he or she will be easily able to navigate through it. That is my promise. Okay. We have three currents, right? Or two. Yes, three are there. Two. Somebody has joined from multiple devices. Yes. So that was a quick introduction. Let's move to the next slide. Arey yaar. It's an humble request. Please join on time. The people who have just joined, it's an humble request that please join on time. Okay. So we have just the people who have just joined. They have just started our session. Okay. So the topic that we are going to see in today's class is nothing but dynamic arrays, also known as vectors. Okay. So these were the things that we already have seen about the time complexity. We'll not go into that. And we also saw one more question day before yesterday. I hope, are you guys were you guys able to solve that question to provide an optimized solution to it? How many of you solved it? Just raise their hand, or at least try to solve it. It was quite easy, I guess. एक नहीं सॉल्व किया दो. Very good. And for the people who are like having a debate today that they are not getting the time, I have a small story for you at the end. Okay? So we saw a warm-up question. So with that, let's start our today's topic with a why. We'll start our today's topic with a why. There's a It's a very good book. Always start with a why. That will actually solve your 50% of the problems. That will give you an eye to basically use whatever you're going to learn in the future with this one. So with that, we'll start with our topic also with a why. Why here basically means why do we need to use vectors when we have a good already pre-built data structure vectors that are arrays, then why there is a need to shift towards vectors. So this thing we're going to basically say with an example. So let's say a beloved example from the starting of the class, from the first lecture we have seen, we are actually discussing this example in our every lecture, that is student marks. Okay. So today also we'll be seeing the same thing. Okay. So let's suppose you have created if you want to store marks of a individual student, so you will create a variable, right? You will create a variable, right? And let's create a data type as integer. Integer marks is equals to 57. So in a particular subject, the student has got 57 marks, right? But in case if you want to store the marks of a multiple student, right? So you will create basically an array, right? So here you are storing the marks of a particular students. Okay. In an array, 17, 53, 27, 88, 93. So how many marks you have? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 marks you have stored in an array, right? The marks are 17, 53, 27, 88, 93. Okay. So you have created an array basically, right? Now, what if I say you want to find the median of these marks? Okay. You want to find the median of this marks. So how will you do it? Can anyone tell what will be the median of this marks?
27. Okay, so you know that the median is always the middle element. Okay, but the first step will be you will have to basically arrange the all elements into the ascending order. That is the first step to find the median, right? So the first step will be you will arrange this all elements in the ascending order. Okay, so to arrange these elements in an ascending order, you are creating another array. Okay? New array. You are creating another array, but now you don't know the size of this array. Basically don't know the size. So first step will be your first step will be that you first traverse through the array one by one and find, okay, and find how many number of elements are there. Then you will create the same number of elements array and put it, and then arrange the all elements in ascending order and store it in your new array. Okay? Store it in your new array. So you arrange this all elements into ascending order. Okay? You arrange these all elements into ascending order. How will it be? 17, 27, 53, 88, 93. Now can anyone tell me what will be the median? 53. 53, right? 53. The median will be 53. Absolutely right. No doubt in this. Okay. Now my next question to you is similarly you have a same array. You have a same array. This is your array. 17, 53, 27, 88, 93. Right? This is your array basically. Now you, as you told, your first step will be to arrange these elements into the ascending order if you want to find the median of it, right? This is your first step. No doubt in that. But we only want to find the average of the marks which are greater than 33, the passing marks, ठीक है ना? जो लोग फेल हुए उनका उनका मीडियन फाइंड करके क्या करेंगे, राइट? तो हमको सिर्फ जो लोग पास हुए उनका मीडियन फाइंड करना है, ठीक है? तो द फर्स्ट स्टेप विल बी, अगेन यू विल हैव टू क्रिएट अ न्यू एरे. Again you will have to create a new array, and the first step will be you will be traversing this complete array to find which numbers are greater than 33. The numbers which are greater than 33, only that number you want to put into this array. So to create this new array, again you will have to traverse through the array, find how many numbers are greater than 3, and store that number, whatever number. Like here, if you have 17 and 27, which are less than 33. So two elements you have to, and that you will store in a particular variable, and that variable will be assigned over here. Because अब अगर कोई नया array बनाते हो, to create a new array, you need to specify the size while declaration. If you don't specify the size, it will give you an error, right? It will throw you an error. तो आपने specify कर दी size. उसके बाद क्या किया? उसके बाद इसके अंदर जो only आपने क्या किया? Okay, let's say you have two marks which are less than 33. That means 3 marks are there. 3 marks are there which are greater than what? 33. So that you will store in this array. Okay, that you will store in this array. उसके अंदर आपने स्टोर कर दिया, लेट्स से लाइक दिस 50, 53, उसके बाद 88, उसके बाद 93. This marks you have stored in this array. Again you have find out the median. You have find out the median. तो median क्या रहेगा यहाँ पर? The new array, it will be 80. 88. Absolutely. ठीक है. तो यहाँ पर if you are able to see, we face a particular problem. This extra step we need to perform while we were creating a new array to find its size. हमको एक एक्स्ट्रा एरे बनाना था, और उस एक्स्ट्रा एरे के अंदर जो पहले स्टेप हमको करने थे, we were not able to assign the marks which were greater than 33 into this array. First we need to find the size. कितने एलिमेंट्स है जिनकी साइज ग्रेटर देन 33 है, देन वो साइज उस एरे को असाइन करो. मतलब एक जो हमने ट्रैवर्स किया एरे, वो हमारा वेस्ट हो गया यहाँ पर. मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उससे इंक्रीज हुई, ठीक है ना? बिग ऑफ एन उससे इंक्रीज हुआ क्योंकि हमको फालतू में ट्रैवर्स करना पड़ा. अगर मेरे पास कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर रहता, या फिर मेरे पास कुछ ऐसा एरे रहता जो कि इसकी साइज स्पेसिफाई करने के बावजूद भी इसके अंदर हम एलिमेंट्स डाल सकते थे और उसके अकॉर्डिंगली उसकी साइज ग्रो करे,
ठीक है ना. Instead of specifying the size, what if I could directly specify my condition कि the elements which are greater than 33, how will I do it? If I want to, like, let me show you how you can do it. Let me erase this all. Like suppose अगर मेरे को वो अगर मेरे पास कुछ ऐसा एरे रहता जिसके अंदर मैं डायरेक्टली वैल्यूज को डाल सकता था विच आर ग्रेटर देन 33, तो मैं कैसे करता था. फॉर इंट I is equals to 0, I should be less than n. n क्या है मेरे एरे की साइज. I प्लस प्लस एरे की कौन से एरे की, मेरे ओरिजिनल एरे जिसके अंदर टोटल मार्क्स थे. ठीक है. और मैं एक न्यू एरे बनाता था. ये न्यू एरे ऐसा स्पेशल एरे है जिसका साइज स्पेसिफिक आपको साइज स्पेसिफाई नहीं करना होता, आप डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यूज डाल सकते हो. तो आई कुड हैव स्पेसिफाइड द कंडीशन कि इफ एरे ऑफ, ये मेरा ओरिजिनल एरे, एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन 33, तो वही एलिमेंट जाकर इस एरे के अंदर बैठ जाए. बट एज सच मैंने इसका साइज स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आई कैन नॉट डायरेक्टली ऐड एलिमेंट्स इनटू दिस एरे. ठीक है. आई विल हैव टू स्पेसिफाई द साइज के कितने एलिमेंट्स है जो मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ. राइट. सो हियर कम्स द नीड ऑफ डायनामिक एरेज. यहाँ पर हमको नीड होती है डायनामिक एरेज की, which are also known as vectors. Is this thing clear? Is the why clear to you all? Hello. Hello. Yes. Yes. Is the Yes, why clear. Yes. clear? So the why is clear to you all. Why there is a need. ऐसे जगह पे हमको there can be n number of examples to it, but this I found the easy one. ठीक है. So I guess the why is clear to you all. So let's move on to the next thing. Okay. So let's start with the class now. Okay, in C++, as I told, the dynamic arrays are known as vectors, whereas in Java, they are known as arrays. तो बेसिकली दोनों के अंदर ही सेम फंक्शनलिटीज रहती है. यहाँ पर सिर्फ आप एक एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट बनाते हो न्यू कीवर्ड से, हमको इसकी जरूरत नहीं, बट तभी एज अ जनरल नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ. तो बेसिकली वेक्टर्स क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट डायनामिक एरेज. इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं. वेक्टर्स आर नथिंग बट डायनामिक एरेज. और इसका जो मेन की पॉइंट है ना, जिसको एरे से डिफरेंस बनाता है नॉर्मल एरे से, ट्रेडिशनल एरे से, जो एक पॉइंट है जिसको डिफरेंस बनाता है, दैट इज यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द एरे. मतलब आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते बाय डिक्लेरेशन, बट देयर इज नो कंपल्शन. ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है आपके पास को आपको साइज स्पेसिफाई करनी है. ठीक है ना. नॉट अ कंपल्शन, करो मत करो, इट्स टोटली फाइन. तो आप बोलोगे कि अगर मैं इसकी साइज डिफाइन नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट इसकी साइज कितनी रहती है. सो कैन एनीवन टेल मी कि बाय डिफॉल्ट व्हाट कैन बी द साइज ऑफ एन एरे बाय डिफॉल्ट. लेट्स सपोज मैं आपको डिक्लेरेशन बना देता हूँ कि एरे वेक्टर का डिक्लेरेशन कैसे रहता है. यू नीड टू राइट अ वेक्टर कीवर्ड. ठीक है. उसके बाद ये वेक्टर, ये बेसिकली मैंने क्या कहा, इसको आप एक एरे की तरह ही इमेजिन करो. ठीक है. यू जस्ट इमेजिन दिस एज एन एरे ओनली. ठीक है. बस इस तरीके का एरे है कि जहां पर आपको स्पेस करो डिफाइन मत करो आपके ऊपर है. ये वेक्टर बना दिया, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है डेटा टाइप. कौन सा डेटा टाइप का ये आपका एरे है, वेक्टर है. तो लेट मी गिव इट एज इंटीजर. पर एक एरो ब्रैकेट्स यूज करना होता है, यहाँ पे यूज किया एरो ब्रैकेट्स. इसके बाद स्पेस दो मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेस देनी है मत देनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी स्पेस देनी है मत देनी है कोई फर्क नहीं पड़ता. और उसके बाद आप जैसे एरे का नाम लिखते थे वैसे ही आपको क्या लिखना है, वेक्टर का नाम लिखना है. तो लेट्स से मैं इस वेक्टर को नाम देता हूँ v1. एक नाम दे दिया v1, एंड दैट इज इट. आपका ये वेक्टर क्रिएट हो गया. बेसिकली आपने इस वेक्टर को क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है. राइट. इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन मैंने इसके अंदर अभी कुछ भी वैल्यूज नहीं डाली. राइट.
नाउ कैन एनीवन टेल मी कि बाय डिफॉल्ट उसकी साइज क्या रहेगी? बाय डिफॉल्ट इस वेक्टर के अंदर क्या रहेगा और उसकी साइज क्या रहेगी? कैन एनीवन टेल? 4 bytes. नो। अरे तुक्के तो मारो। देखो यार, अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि तुक्के मारो, तो पहला तुक्का हमेशा लैंग्वेज में मारना जीरो। उसके 50% चांसेस रहते हैं कि वो आंसर सही होगा। मेरा एक्सपीरियंस है। तो जीरो नहीं कहीं तो मार ही देना, मतलब वो रहता है, बहुत बार रहता है कि जीरो इसका आंसर रहता है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी साइज रहती है जीरो। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर इसकी साइज रहती है जीरो। और जावा के अंदर इसका जो ये रहता है साइज रहता है अरे लिस्ट का, वो रहता है 10। जनरल इंफॉर्मेशन की चाहिए यार। तो बाय डिफॉल्ट इसकी साइज रहती है जीरो। और क्या क्वेश्चन था मेरा? उसके अंदर क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट? क्या एलिमेंट है? तुक्का मारो तुक्का। जीरो. जीरो हाँ जी। कुछ भी नहीं होगा. ही जीरो नहीं। होगा। जीरो होगा जीरो। मतलब अगर आप ऐसा कोई एरे बनाते हो, वेक्टर इंटीजर टाइप का, और उसका नाम दिया मैंने वी पर। ठीक है, अगर मुझे उसकी साइज स्पेसिफाई करनी थी, मेरे को लेट सपोज 5 साइज का वेक्टर बनाना है, मतलब 5 एलिमेंट्स इसके अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ। तो आई विल राइट इन पैरेंथेसिस, no, not in square bracket, not in curly braces, in parenthesis I will write 5. So this will be the size of the array. ठीक है ना? As such it is dynamic, it can increase, you can increase it as much as you want. बट आपने स्टार्टिंग में उसकी साइज 5 बता दी, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या स्टोर होगा? समथिंग लाइक दिस। वी विल वेरीफाई दिस ऑलवेज। गॉट द पॉइंट? एरे के अंदर क्या स्टोर हो रहा था अपने ट्रेडिशनल एरे के अंदर? गार्बेज वैल्यू हो रहा था, याद आ रहा है कुछ? हाँ. अरे याद आ रहा है कि एक बार फिर से रिविजन चाहिए? ऐसा मत करो। आ रहा है सबको यार? अरे हाँ या ना? ये. हाँ। हाँ, यस. ठीक है ठीक है। यस. सो अभी तक इतनी कहानी क्लियर है आपको? बेसिक इंट्रोडक्शन पता चल गया वेक्टर का? बेसिक बेसिक चीजें। अरे हाँ या ना? हाँ. Yes. तो इसके बाद देखिए हम कुछ बेसिक बेसिक चीजें करेंगे, ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें हमको आज करनी नहीं है, इससे थोड़ा दिन लगेगा। तो इसको तो और बात कर रही हूँ। तो हम कुछ फंक्शंस बाय डिफॉल्ट जो हमको वेक्टर प्रोवाइड करते हैं, मेथड्स कह लो, फंक्शंस कह लो, की बात है, जो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, वो थोड़े हम बेसिक देख लेंगे। ओके, उससे पहले नहीं था, देखो मैंने आपको हमेशा कहा है कि क्लास में पूरा चीज कवर नहीं होता। अगर आई विल प्रॉमिस यू, अगर मेरे को पूरा का पूरा वेक्टर 100% कवर करना है, जो कि मेरे से पॉसिबल है ही नहीं चैनल में, बट अगर लेट्स से मेरे को 50% भी कवर करना है, तो मुझे एटलीस्ट 1 मंथ लगेगा। इतना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आप खुद से भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। हाउ यू कैन डू इट, आई विल शो यू। क्या करेंगे, होम पे जाएंगे एंड जस्ट राइट अ सिंपल थिंग, सी प्लस प्लस वेक्टर डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर आप जैसे आ दो, वहाँ पे आपको दिखेगा, मैं पहले ही गया हूँ। यहाँ पे यहाँ पे सी प्लस प्लस पे जाके ना कौन से भी रेफर कर सकते हैं, सी प्लस प्लस पे ठीक है, पहले सी प्रेफरेंस भी ठीक है, मतलब तो बट मैं ज़्यादा सी प्लस प्लस यूज़ करता हूँ, बट इसके बारे में मैंने कई 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 लोगों से सुना। दिस बोथ साइड्स आर गुड, बट ये भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारा कुछ मिलेगा वेक्टर से रिलेटेड। बेसिक थियोरेटिकल पार्ट है, बट ये हमारे काम का नहीं ज़्यादा।
नीचे आप आओगे तो यहाँ से आपके काम की चीजें शुरू होती है। बेसिकली इसके कंस्ट्रक्टर्स वगैरह पे जाओ तो कंस्ट्रक्टर आई गेस कितने हैं इनके? 4 कंस्ट्रक्टर है। जावा में 3 कंस्ट्रक्टर रहते हैं, यहाँ पे 4 कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लोर करो थोड़ा सा कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, फिर कंस्ट्रक्टर, रेंज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर सारे कंस्ट्रक्टर का आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एट दैट दिस इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ सम पर्टिकुलर क्लास, तो ऑफ कोर्स दिस विल हैव कंस्ट्रक्टर्स एज वेल। और एक एग्जांपल है कि लाइक इफ यू जस्ट यूज इट समथिंग लाइक दिस, so by default your empty vector or empty constructor is being evoked। ठीक है, तो अच्छे से एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं और बहुत कुछ है, इसके मेथड्स वगैरह भी रहेंगे नीचे। ये देखो अपन जब अभी 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 जो अपन स्टार्ट करेंगे इसमें भी बेसिकली मेंबर फंक्शंस, तो कैपेसिटी वगैरह के मेंबर की साइज है, कैपेसिटी वो भी डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है ना, तो यू हैव मॉडिफायर्स, यू हैव, मैंने कहा था ना अगर ऐड करना हो तो यू हैव पुश बैक, यू हैव पॉप बैक, तो दिस आर बेसिकली मॉडिफाई करने के लिए। allocator, get allocator, there are a number of things to explore। मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से रेफर करता हूँ, काफ़ी और कुछ इधर उधर से लाके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, बट आई कैनॉट प्रेजेंट दिस कंप्लीट थिंग। ठीक है ना, सो दैट्स व्हाई ट्राई टू एक्सप्लोर द थिंग्स बाय योर ओन आल्सो। सी वेक्टर का एक बहुत बड़ा है यहाँ पे, बट यू एक्सप्लोर इट बाय योर ओन। जैसे आप नोट्स वगैरह बनाते हो तो नोट्स वगैरह अगर बाय डिफॉल्ट आपको परेशानी हो जाए कि नोट्स को फिर से देखो, उससे अच्छा है डॉक्यूमेंट आपके सामने हमेशा रहता है अवेलेबल, सो ट्राई टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। ओके, तो आज हम बेसिक बेसिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे। तो वी यू ऑलरेडी नो, वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट साइज। ठीक है ना, साइज हमको बेसिकली क्या देता है? साइज ऑफ द वेक्टर। ठीक है ना, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज दिस इज स्मॉलर पुश बैक। ये बेसिकली आपके एरे के एंड में एलिमेंट्स डालने में मदद करता है। ठीक है ना, इसके अंदर आप कुछ भी डालोगे वो जाकर एंड में एंटर होगा। ठीक है, you cannot enter 2 3 values simultaneously, you only have to enter one value and that will add at the last position of your factor basically। उसके बाद पॉप बैक भी रहता है। पॉप बैक बेसिकली किसके लिए यूज होता है? विल सी द इम्प्लीमेंटेशन आल्सो। इसके अंदर ऐसा यू डोंट हैव टू पास द वैल्यू, बट दिस एक्सप्लिसिटली रिमूव्स द लास्ट वैल्यू ऑफ योर वेक्टर। आपके पास एक वेक्टर है 5 7 9 0 11। ठीक है, so you can, like, if you want to, if you are using pushback, so it will add at the end whatever element you want to add, and this pop back will remove the last element। उसके बाद you have something capacity, also capacity, this will give you the capacity। You will again today see the difference of, I will ask you what is the difference of capacity in Excel, and this both things are only used at the, only means not only this thing but at a very basic scale. These are the only things which makes a vector, which makes an array to a vector. This size and capacity. I will show. I will tell you this all things. No need to worry. Then you have like you have a number of things. You can access an array using the indexes. This vector also can access the using indexes। Let's suppose you have this array. ठीक है, आपके पास ये array है, तो you can access like array of I। ठीक है, and you can add some values directly inside it। You can also print it instead of doing just, instead of showing this things to you all over here, let's get a business। अभी कौन join बात भाई? प्रसाद, हेलो हेलो प्रसाद, can you hear me? नहीं प्रोपेयर है तो okay, so let's start with the first। What is the syntax to include all the header files at once only? Can anyone tell? Bit slash steady.
A plus topologization. दिस इज इट राइट. इससे क्या होता है, सारे के सारे जितने भी हेडर फाइल्स है वो एक साथ इंक्लूड हो जाते हैं. Space is right? So I told you to create, basically to create a vector, or to declare a vector. How will you do it? Declare a vector. So you have to basically give, you have to use the keyword vector, and then you need to specify the data type and the vector, right? And this is how you declare it. Simple, right? This is it. If I run the code, it will run completely fine. No error. Okay. Right. So let's try to, as I told you, initially the size of it will be 0. Okay. If I want to print size of, not like this, v1 dot size. Okay. I can print the size. Size of the v1 vector is, okay. And also try to print what are the what is the initial value that has been assigned to this vector v1. Okay, so I can print simply v1. Will that be fine? I'm not able to do that, right? So this way we'll try to do that. ठीक है. You guys are able to see the size of the vector is 0. Okay. And here you are getting printed nothing. Okay. You are getting printed nothing. So this implies that whenever you have, if you are just writing like this and not giving any size, okay, you are not giving any size to it. So by default, the size is 0. So no elements are at the initial point. No elements are stored at the initial point. Inside that array is completely empty. मतलब वो zero है अभी, उसके अंदर भी कुछ नहीं. ठीक है. If let's suppose I try to what I try to do, I try to initialize some size to it. Let me give it the size as 5. तो मैंने 5 size का vector बना दिया, name as v1. So first of all, I'm trying to print the size of it, and then I'm trying to print the first element. I'm trying to print the first element. So let's see. See. So as soon as you print the first element, you are getting 0 at that position. So at the first position, your 0 will be there. Second position also 0 will be there. If I try to use a for loop instead of this, for int elements inside v1, see out elements. Okay. And instead of handle, I will use the space. Let me try to print it again. So now you will be able to see the size of the vector is 5. Absolutely right. Size is 5. Okay? And the elements that are present inside it are 0, 0, 0, 0, 0. Are you guys able to see? Yes. Yeah. Yes. Yeah. So this is how the arrays actually works. Sorry, vectors actually works. Okay. Okay. How can you initialize? Basically, how can you initialize a vector? Initialize a vector. Mhm. Let's try to initialize a vector. Similar way, the way which we were doing inside the array, similarly we can do it over here also. So if I have the vector of type in v2, okay, and let me give the size as 5. Not necessary. Okay, if I give the size 5 and I also pass one another argument inside it, let me pass 10. So what this means is
the 5 will be the size of my vector, right? 5 will be the size of my vector. And all the 5 elements that will be present inside my vector v2 will be of value 10. ठीक है, विल बी ऑफ वैल्यू मतलब जितने भी मेरी 5 पोजीशंस रहेंगे वेक्टर के अंदर उन सारे पोजीशन पर मैं डिफॉल्ट वैल्यू पास कर रहा हूँ 10. Default value I'm passing it as 10. If you want to check it out, how will you do it? We'll use a foreign loop for int elements inside v2 and print all the elements. Okay, let me give a space. Okay. Let's try to print it, and you will be able to see there are total 5 elements, and all that 5 elements are of value 10. Okay. The people who were absent in the last class, I know they will not be able to get this. So this is basically another type of for loop, which is a for n loop. So the initial thing which you see, we were doing something over there as int I. So this is that thing, int elements, and all the elements in v2. So this element, the new integer that we have created, basically will go at every position of v2 and will access that. Okay, now let me again try to explain this thing, because this thing I will be going to use a lot. Okay. Even you can, if you are not able to get familiar with this, even you can use the uh, normal for loop, but try to use it now. This is quite slow. This is quite small. Okay. So what you are doing, you will have initially a for int I is equals to 0. I is less than the size of the array. Size of what is its name v2, and you were doing I plus plus. And what you were doing inside this, if what is my v2 के अंदर में हर एक एलिमेंट पे this I was going, if this is your v2 10 10 10 10, this is your v2, this I was going to every individual and printing that thing. So getting every individual and printing that thing. We have just replaced this I with element. ठीक है, ये I का काम अभी एलिमेंट कर रहा है. अभी एलिमेंट क्या कर रहा है, वी डोंट हैव टू यूज दिस, वो एलिमेंट डायरेक्टली इसके पास जा रहा है और इसको एक्सेस कर रहा है विदाउट यूजिंग v2. एक बार आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया ना कि v2 को जाके एक्सेस करो, अब मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जाएगा इसको एक्सेस करेगा, जाएगा उसको एक्सेस करेगा वन बाय वन. और यहाँ पर अभी मेरे को हर एक, इफ यू सी मोस्ट एग्जांपल वी वांट टू ट्रैवर्स थ्रू द कंप्लीट एरे, तो यहाँ पर यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई कि कितने नंबर का साइज है, जहाँ पे हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था. यहाँ पर इन दिस सिंटैक्स यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई दैट काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि ये यूज इसीलिए होते हैं कि जब आपको पूरा का पूरा एरे एक साथ ट्रैवर्स करना होता है, एट दैट मींस उसके टाइम पर इस फॉर इन लूप को हम ज्यादा यूज करते हैं. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू गेट फैमिलियर विद दिस, डायरेक्टली यूज द सिंपल फॉर लूप. ठीक है ना, सिंपल फॉर लूप कैसे रहेगा इसकी जगह पे, लेट मी कमेंट दिस. फॉर लेट कौन ज्वाइन हो रहा है, for int I is equal to 0, I is less than v2 dot size I plus plus, और क्या कर दो, सी आउट कर दो v2 of I. सिंपल. ऐसा भी कर सकते हो, बट इससे अच्छा हो पहला वाला सिंटैक्स नहीं तो ज़्यादा प्रेफरेबली अच्छा होता है. सो विल गेट द सेम थिंग, राइट, नो डाउट. ठीक है, बेसिकली ये एक तरीका रहता है इनिशियलाइज करने का, डायरेक्टली यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया आपने वैल्यू को, यही पे कर दिया, राइट. सेकंड वे कैन बी लाइक इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजिंग द थिंग ओवर हियर, आप क्या करो, यहाँ पर एक्सप्लिसिटली चीजें दो, या फिर यहाँ पर भी दे सकते हो समथिंग लाइक दिस, देन स्पेसिफाई द थिंग्स ओवर हियर ओनली. ओके, तो 10 20 30 40 50 something like this, right? So here you will not have to use this. ठीक है, you don't have to use it. So basically आपने specify कर दिया. Now if I try to print the elements, I will get 10 20 30 40 50 print. ठीक है, this is the case. और क्या तरीका रह सकता है array को initialize करके या vector को initialize करने का. Okay, one interesting thing. This question is for 10 rupees. ठीक है,
₹10 के लिए क्वेश्चन है आपके लिए। थोड़ा सोचना, ठीक है, थोड़ा सोचना इस चीज को विदाउट आंसरिंग। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, V2 के सेकेंड पोजीशन पर आई राइट 22, V2 के सेकेंड पोजीशन पर मैं 22 डालता हूँ, तो क्या कोई बता सकता है कि क्या हो सकता है इस एरे के अंदर? इफ आई ट्राई टू प्रिंट दी एरे अगेन, मैं कंप्लीट एरे को प्रिंट कर रहा हूँ फिर से फॉर लूप की हेल्प से, तो मुझे क्या प्रिंट होकर आएगा स्क्रीन पे? विल इट बी समथिंग लाइक दिस 10 20 22 30 40 50 or something like this, 10 20 uh, 22 40 15 or anything else? Will I get an error? आपको क्या लगता है? Can anyone tell? Raise your hands. Yes, Nima. रिप्लेस होईल ना? Yeah, right. And why do you think so? कि क्यों replace हो सकता है? कारण की आपण त्या V of 2 च्या जागी टाकतोय ना. Okay. Right. We are directly replacing this thing. हम इस चीज को directly manipulate कर रहे हैं. This will not be shifted towards right or towards left. We will be completely changing that particular element. Okay, let's try to do it. V2 और इसके अंदर अगर मैं second position देता, let's give 22. Let me try to print the elements again. So you'll be able to see that जो 30 था वो completely replace हो गया, वो ना shift हुआ, वो directly replace हो गया, ठीक है? ये is able to see it. Is it clear? Hope it is. अभी तक किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? Any doubt to this point? If not, I'm moving forward. ठीक है? Let's try to see how can we use the default functions such as pushback, ठीक है? उसके बाद pop-up भी है, pop-back, sorry. Let's try to see these functions as well. So if I have a default, if I have an array, if I have a vector, sorry, vector of type int, and let me name it as v3. V3 बना के इसको, and let me initialize it 10 20 30 40 50, right? I will show you how the pushback operation basically works. So you have something pushback, and if I want to add something again, let me add 60, and let's try to print out the elements. And elements inside my v3 and print all the elements. ठीक है जी. एंड इसके सामने मुझे देना पड़ता है अपने वेक्टर का नाम. v3 के अंदर मेरे को पुश करना है, तो v3 डॉट पुश बैक 50 में 50 जाएगा, 50 ऑलरेडी है इसके अंदर, राइट? 60 करते हैं उसका. Let's try to print all the elements. Now you'll be able to see that 60 is getting add on at the last of the vector. काफी आसान यूज केस है. Now I have a question again to you all. This question is again for 10 rupees. Just listen to it carefully. Okay. Let's say मैं क्या करता हूँ, v3 dot pushback what I can do is like it. Okay. Size. इसके बाद do like something.
Okay. Can anyone tell me if I'm adding all these things inside the original array V3, what will be my output? Can anyone tell? This is for 10 rupees. Let's make it for 20 rupees. तो ये तो पता है मेरे को 10, 20, 30, 40, 50 रहेगा. इसके आगे क्या रहेंगे? I want to see that. Or will it be an error? Or like क्या आ सकते हो? What can be the option? Let me explore the option first. Okay, so this is for it. Enough for it. Okay, those who have raised their hand, let me first see who have raised their hand. हाँ वैष्णवी. 22.5 आणि ए पण डिस्प्ले होईल. I want होईल ना हे आंसर नको. स्पेसिफिक आंसर पॉइंट टू पॉइंट. इसके बाद क्या आएगा? या फिर एरर आएगा या फिर what do you think? What will be displayed on my screen? And these things I have already discussed. This is not something out of syllabus. You have the answer. That I do. Good voice. Is the voice clear? Yes. 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 Are you able to see? Extremely sorry. Extremely sorry. I don't know why this thing happened. I thought my net is over, but net is there. Okay, so can anyone tell? Just please raise the hand. The question is yeah, must raise the hand. अभी यार कोई चीटिंग मत करना, नहीं तो कोड में टाइप करके बताओगे. Okay, yes, my boy. सबसे पहले 10, 20, 30, 40, 50 और उसके बाद 22.5 और ए प्रिंट होगा. Wrong. Anyone else? Yes, Bhushan. ये भूषण रहता है हमेशा, पता है 20 NR. क्या? काय? इथे 3 प्रिंट 20 NR. आउट. अरे बाळ, इथे 3 प्रिंट आउट स्टेटमेंट आहे. तुम्ही विसरत आहात का? हे पण एक प्रिंट. सॉरी, आई एम एडिंग 3 एलिमेंट्स. सी 3 एलिमेंट्स ऐड करो 20 कैसे आएगा? एनीथिंग एल्स? एनीवन एल्स? कौन था उसके बाद? मुझे लगा भूषण मार लेगा. यस कुमकुम. नहीं सॉरी, अभिषेक अभिषेक अभिषेक. 10, 20, 30, 40, 50, then 5 print होईल. त्याच्यानंतर 22.5 आणि थर्ड लाईन मध्ये एरर येईल कारण की इंड मध्ये आहे ना. रॉन्ग रॉन्ग कुमकुम. हेलो. बोल रही है कि विशेष स्पीड. 10, 20, 30, 40, 50 तक गया ना. उसके बाद 22 रहेगा और ए का शायद पता नहीं 65.
You have missed out this thing. एक ही चांस रहता है, उसमें आप बराबर ध्यान में दोगे तो यू आर नॉट गिवन अ सेकंड चांस. यस तनिष. 10, 20, 30, 40, फिर साइज ऑफ द एरे 50, फिर साइज ऑफ द एरे 22 और एक ही जगह 5. ओके. और एक ही जगह ASCII कोड आएगा. व्हाट इज ASCII कोड? ओके राइट, यू आर राइट. बेसिकली ASCII कोड आएगा तो फर्स्ट. तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ पहले ही बोली है कि एरे के अंदर अगर आप कैरेक्टर डालते हो तो उसका टाइप कास्टिंग होता है. ये चीज़ मैंने बोली थी. एनीवन रिमेंबर? इसको याद नहीं है? ठीक है, मैंने बोली थी ये चीज़ क्योंकि मुझे याद है, इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाया. और यहाँ पर 22 आ रहा है क्योंकि वहाँ पे आपका ऑफकोर्स इंटीजर डेटा टाइप है, तो वो 0.5 को हटा रहा है. ये भी चीज़ आपको पता है. यहाँ पे बेसिकली साइज प्रिंट हो रहा है, मतलब साइज उसके अंदर ऐड हो रहा है. तो इफ आई जस्ट रन द कोड, तो सिर्फ इसमें सही आउटपुट देना चाहिए, नहीं तो मेरा मुँह हो जाएगा. So yeah, it is giving me the right output. Ask the value of a capital E is 65. You can verify that. So ये clear है कैसे हो रहा है ये basically. I hope this thing is clear. ठीक है. Let's move to the next thing. So you have learned about what is pushback. You also have something pop-up जिसके opposite है pop-up, pop-back. Sorry, इसको मैं pop-up भी बोलता हूँ. तो as such this doesn't take any argument inside it. ठीक है ना. तो अगर मैं पॉप बैक करूँगा तो जो ये 65 था हमको मिला था वो निकल जाएगा. अगर मैं फिर से एक बार पॉप बैक करता हूँ, कैन यू मेक इट अ बिट इंटरेस्टिंग? ट्राई टू मेक इट अ बिट इंटरेस्टिंग. एरर मत लग जाए इससे. यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाता हूँ नीचे, और नॉर्मल फॉर लूप, ये नॉर्मल फॉर लूप लगाते हैं. then die is equals to 0, I should be less than size of this vector minus 3, और कहते हैं इसको i प्लस प्लस. एंड क्या करूँगा मैं b3 डॉट पॉप बैक. इसको करने से पहले मैं एक नॉर्मल ऑपरेशन करके बताता हूँ पॉप बैक का. पॉप बैक कुछ नहीं करता है, पीछे से एक एलिमेंट निकाल देता है. ठीक है. तो हमने देखा था कि जैसे हम ऐड कर रहे थे ये सारी चीज़ें, आखिरी इंडेक्स पे 65 था. तो इफ आई यूज नॉर्मल पॉप बैक, सो वो 65 को हटा देगा. तो सिर्फ मेरे को 22 तक नंबर प्रिंट होकर आना चाहिए. 22 तक है. एक बार मैं अगर फिर से पॉप बैक यूज करता हूँ तो पीछे का 22 भी निकल जाएगा. इफ आई रन द कोड अगेन, if I run the code again, you'll be able to see that you are getting the thing. See, 22 remove हो गया, and you are only able to get element still 5. This is the use case of pop back. Delete करना basically. तो मैं for loop लगाऊंगा. I don't know if this will run or not, but let's try. एक I से शुरू हुआ, साइज से मैंने -3 किया, मतलब 5 साइज से 2 तक. हाँ, या फिर साइज हो, नहीं साइज तो फिर इंक्रीज हो. I will also try to showcase you the size before any doubt. See out size, v3 की साइज प्रिंट करूँगा मैं यहाँ पर. ठीक है. साइज before pushing the elements inside the array. ठीक है. मतलब ये ऑलरेडी प्रेजेंट थे मेरे एरे के अंदर एलिमेंट्स, तो ये मेरे को बेसिकली आई एम ट्राइंग टू प्रिंट द साइज जब इसके अंदर हमने ऑलरेडी 5 एलिमेंट्स डाले थे एट दैट टाइम. और फिर ये सेम चीज़ मैं कब करूँगा, जब मैंने इसके अंदर 3 और एडिशनल एलिमेंट्स डाले. कब डाले, ये यहाँ पे 3 एलिमेंट्स डाले, उसके बाद मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगा देखने का कि पुश करने के बाद उसकी साइज क्या होती है.
size after pushing the elements inside the array. ठीक है जी, अब तक सही है। और एक चीज, तो यहाँ पर देखना आई गेस कि ये साइज बढ़नी चाहिए, ये एलिमेंट्स डालने के बाद वो साइज 8 बननी चाहिए। तो यहाँ पर मैं साइज लिख रहा हूँ जो कि 8 रहेगी, और उससे मैं माइनस करूँगा 5 माइनस करता हूँ, ठीक है। और उतने टाइम में पॉप बैक कर रहा हूँ। So let's first see if this code runs or this code gives me an error. तो रन हो रहा है। Basically the size was 6. Initially the size was 5 और जब हमने 5 elements ऐड किए तब साइज हो गई 8 और हमने वो सारे के सारे 8 एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिए, राइट। मतलब यहाँ पर अभी साइज है 8, उसमें से मैंने 5 माइनस किए और मैंने 5 बार पॉपअप किया, ठीक है। 5 बार मैंने पॉपअप किया और उसके बाद मैं फिर से एक बार प्रिंट कर रहा हूँ एलिमेंट्स को, ठीक है जी। सी आउट after popping the elements 5 times, ठीक है जी, सही है। ये सारा कुछ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फिर अभी ये यही आपकी नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं तो अभी ऐसे ही लिखूंगा अच्छे से, सो दैट यू कैन रेफर इट। तो आर यू गाइस एबल टू सी? बट हमने कितनी बार किया था? आफ्टर पॉपिंग द एलिमेंट्स 5 टाइम्स, 5 बार पॉप करने के बाद तो मेरे को ये 5 एलिमेंट्स पॉप होने चाहिए थे, बट हुए कितने? सिर्फ 2 एलिमेंट्स पॉप हुए हैं। तो कुछ गलत कर दिया क्या? सिर्फ 2 एलिमेंट्स दिए हैं, less than 50 dot size minus 5, 50 dot size minus 5 है तो 8 देगा कंफर्म। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सप्रेशन 8 डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो कितने एलिमेंट्स को कर रहा है? 1 2 3 को कर रहा है, बराबर है, 3 को करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। आई गॉट द साइज, क्या है एरे का नाम क्या है? d3 डॉट साइज। और मेरे को कितने करने हैं टोटल? 5 एलिमेंट्स करने हैं ना, तो मैं सिर्फ 3 करूँगा। मतलब साइज आ गई 8 और एलिमेंट्स मैंने माइनस किए 3, मतलब 5 बार रन, तो लूप रन होगा, 5 मेरे एलिमेंट्स निकल जाएंगे। Let's try to run the code again and this time we should give me the right output. ठीक, तो ओके ओके बात है, ये भी 5 बार चल रहा है। लेस देन और इक्वल टू रहना चाहिए। काउंट करता है, इसको बंद कर देता हूँ, फिर से नो कंफ्यूजन। एंड नाउ 10 20 30 40, I is equal to 1, I should be less than or equal to size with 2 dot size minus, छोड़ देता हूँ, डायरेक्टली करता हूँ मैं, 5 बार चलाओ इसको, तो बस सिर में दिखाओ, तो 5 बार हो गया है, ठीक है। उसने 5 बार पॉपअप कर दिया और आखिर के 5 एलिमेंट्स हमको निकल के आ गए हैं, ठीक है। ऐसा तुम किया भी हो, इस बार से आखिरी ट्राई करूँगा। डॉट साइज माइनस 3, I should be less than or equal to this. छोड़ो इस चीज़ को, डायरेक्टली 5 बार लूप चला रहा हूँ मैं।
and I'm getting the 5 elements popped up from the end. Is the thing clear to you all? Is the thing clear? ठीक है, 5 elements basically आपने से pop up किए, that is it. No complex thing in that. Is the thing clear? सबको clear है? Okay, so these were some basic operations that we saw. ठीक है, और कई सारे रहते हैं वो हम देखेंगे धीरे धीरे देखेंगे. ठीक है, अभी मेरे को थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी जो इससे भी ज़्यादा मतलब मायने रखती है, क्योंकि बेसिकली इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मैंने इस पर देखे हैं. दैट थिंग आर बेसिकली हाउ दिस थिंग्स आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड एट द बैक एंड साइड. मतलब जो हमारे नॉर्मल एरेज रहते हैं उसकी फंक्शनिंग और जो वेक्टर है उसकी फंक्शनिंग कैसे की हुई रहती है. तो ऑफकोर्स एरेज की फंक्शनिंग इमेजिन करना तो काफ़ी आसान है. एक फिक्स नंबर का हमको एक कंबाइंड मेमोरी अलोकेट होता है, एक ब्लॉक अलोकेट होता है जिसकी साइज फिक्स रहती है जो हम स्टार्टिंग में बनाते हैं. तो बेसिकली अब क्या होगा, मैंने इंटीजर का 5 साइज का बनाया तो हमको 5 ब्लॉक मिल रहे हैं इंटीजर के, जिस जो कि उसमें एक चीज़ कॉमन क्या रहती है, वो 5 ब्लॉक सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और वो 5 ब्लॉक क्या रहते हैं, एक मिनट के क्या रहते हैं, कॉन्सिक्यूटिव रहते हैं. ठीक है, एक मिनट के कॉन्सिक्यूटिव नेक्स्ट टू बनाना होता है. ऐसे हमारा एरे फॉर्म होता है जो कि काफ़ी आसान है बनाना. चीज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है कि डायनेमिक एरेज में चीज़ें कैसे हो रही है, मेमोरी कैसे बढ़ रही है, मेमोरी कैसे अलोकेट हो रही है, क्या मेमोरी जब हम एलिमेंट डाल रहे हैं उसी समय के एक से बढ़ रही है या फिर कुछ फिक्स अमाउंट से मेमोरी बढ़ रही है. एक्चुअली ये हो कैसे रहा है, कौन सी मेमोरी के अंदर हो रहा है, स्टैक के अंदर हो रहा है, हीप के अंदर हो रहा है. तो ये सारी चीज़ों को हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस चीज़ की होनी की, अगर वो इंटेंशनली बढ़ रहा है हमारा एरे साइमल्टेनियसली जैसे जैसे हम उसके अंदर अरेस्ट आते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. तो ये चीज़ कोई भी डिस्कस नहीं करता, कोई भी नहीं डिस्कस करता, बट हम लोग करेंगे. ये सेल्फ स्टडी का पार्ट रहता है, बेसिकली आपकी रिसर्च का पार्ट रहता है. अपनी चीज़ पढ़ ली तो ये आपका होमवर्क का पार्ट रहता है कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन कैसे काम हो रहा है. ठीक है ना, बिहाइंड द सीन ये फंक्शन की फंक्शनलिटीज किस तरीके से लिखी गई है. इफ यू गाइस आर एबल टू रिकॉल, हमने इसकी फंक्शनलिटी लिखी थी एरे के अंदर, बट वहाँ पर मेजर ड्रॉबैक क्या था, हमको एरे की साइज स्पेसिफाई करनी रहती थी. Are you guys able to remember? We have implemented this thing. We have created the functions based on the arrays. Push करने के लिए, pop करने के लिए, add करने के लिए, delete करने के लिए, adding an element at particular index, removing an element from a particular index. You remember? इसका मैंने होमवर्क भी दिया था. Yes. तो सिमिलर टाइप की कुछ फंक्शनलिटीज होती है, बस एक चीज एडिशनल रहती है, डायनामिक. साइज कैसे होती है डायनामिकली अलग, वो चीज़ को हम समझेंगे. बाकी ये सारी चीज़ तो हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की हुई है. सो अगेन मूव ऑन टू द स्लाइड एंड दिस विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू. ठीक है, इससे अब तो थोड़ा सा आप फ्लैश वगैरह मार सकते हो दूसरे के सामने. तेरे को सिर्फ वेक्टर्स पता है, वेक्टर्स कैसे होते हैं वो तेरे को नहीं पता. तो या दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो कौन सी वाली स्लाइड पे आ गए हम. ठीक है जी. तो क्या करना था मुझे डिस्कस. ओके, so let's say you don't have you want to uh, create a dynamic array. You want to create a dynamic array. Dynamic array in the sense of vector you want to create. तो वेक्टर मैंने बोला, अगर आपको एक वेक्टर क्रिएट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो. देयर कैन बी डिफरेंट अप्रोचेस. उसमें का पहला अप्रोच भी अपन को स्टडी में. तो मैंने कहा कि वेक्टर जो रहता है वो क्लास का पार्ट रहता है. जैसे इट इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास. ठीक है ना, तो हमारे पास कुछ क्लास है, उसके अंदर हमने एक डेटा वगैरह क्रिएट किया है और मेथड्स भी क्रिएट किए हैं. और मेथड्स के अंदर बेसिकली क्या रहते हैं, फंक्शंस ही रहते हैं हमारे. इसके अंदर बेसिकली फंक्शंस ही रहते हैं. फंक्शंस किसके, पुश के, पॉप के, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी की तो हमको पता है. मेन चीज़ आती है मेमोरी अलोकेशन. मेमोरी कैसे अलोकेट हो रही है, मेमोरी कैसे एक्सपांड हो रही है. इज इट इन अ लीनियर सीक्वेंस. Linear sequence means dependent on variables.
और इज इट रैंडम? ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे पर्सपेक्टिव से, कि हम अगर उस पोजीशन पर रहते, if we were at that particular position where we face the similar kind of problem and we want to provide a particular solution for it, then how could how we could do it, how will we have done it basically. तो पहला अगर मेरे को कोई बताता कि अगर मेरे को आपका ये प्रॉब्लम है कि आपको नहीं है यूजर से इनपुट लेना है और आपको पता नहीं कि कितना यूजर से इनपुट लेना है, तो लेट्स से आप में से किसी ने आकर मेरे को बोला, जैसे स्वप्निल ने मेरे को आकर बोला, स्वप्निल ने मेरे को आकर बोला कि भैया यार ये वेक्टर वगैरह के झंझट में तो अभी मेरे दिमाग में चल रहा, मैं क्या करूँगा, एक सिंपल अप्रोच करूँगा कि मैं स्टार्टिंग में ही मेरे क्लास के अंदर जो मेरा डेटा मेंबर्स है उसके अंदर एक मैं बहुत बड़ा एरे क्रिएट कर दूँगा, आई विल क्रिएट अ वेरी बिग एरे। तो आप कितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स डालो बैठ ही जाएंगे, ठीक है ना। लेट्स सपोज स्वप्न ने सबसे पहला दिमाग लगाया, उसने 1000 एलिमेंट्स का एक एरे बना दिया, ठीक है। अब जो मर्जी उसके अंदर ऐड करो, ठीक है। तो उधर से वैभव आता है, वैभव कहता है कि नहीं भाई मेरे पास तो 2000 एलिमेंट्स है और वो मुझे एक एरे के अंदर डालनी है, तो क्या तेरा एरे उस डिमांड को सेटिस्फाई कर सकेगा? तो स्वप्निल ने कहा नहीं। स्वप्निल ने क्या किया कि ठीक है भाई तेरी डिमांड अच्छी है ना, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास भी स्पेस की कमी नहीं है, मैं 1 लाख साइज का एरे बना देता हूँ, 1 लाख कैपेसिटी का एरे बना देता हूँ। तो वैभव भी फट गई यहाँ पे। तो वैभव बोला हाँ ठीक है ना, तो 1 लाख डालेगा ना, 1 लाख की साइज कर देना, मेरे पास 10 लाख एंटिटीज है, मेरे पास 10 लाख और रहते हैं एबीसी, 10 लाख एंटिटीज है, अभी तू बता क्या करेगा। तो वैभव बहुत ये है जिद्दी इंसान, उसने क्या किया, मेरे पास 10 लाख एंटिटीज है ना, मेरी जितनी की जितनी रैम है, ठीक है ना, और या फिर रैम नहीं कह सकते, मेरा जितना स्टैक का स्पेस है ना, वो पूरे स्टैक के स्पेस की मैंने एरे बना दिया, अब बोल क्या करेगा। वैभव की फिर से फट गई वैभव की फिर से फट गई। तो वैभव ने मान दी हार, ठीक है भाई हम हार गए, तू जीत गया, ठीक है। तो स्वप्निल ने यहाँ पे वैभव को हरा दिया, स्वप्निल ने बहुत बड़ा एरे क्रिएट कर दिया ऑफ अ वेरी बिग साइज, ठीक है। और उसके अंदर आप डालते जाओ एलिमेंट्स, वो भर ही नहीं रहा। सो दिस कैन बी वन पॉसिबल सोल्यूशन, ये भी पॉसिबल सोल्यूशन है, आपने बहुत बड़ा एरे बना दिया जिसके अंदर आप एलिमेंट्स डालते गए, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी एलिमेंट्स डालो। So this could be one very basic approach to this problem. You created a very big array, ठीक है। But but we need to analyze the pros and cons also of this approach, ठीक है। तो इस अप्रोच के क्या प्रोज एंड कॉन्स रहे थे, तो वैभव ने बताया कि हाँ तो जीत तो गया, बट जो तूने एरे बनाया, जो तूने प्रोग्राम बनाया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तूने जो प्रोग्राम बनाया उसके कुछ प्रोज है कुछ कॉन्स है, बट प्रोज काफी कम है, प्रोज एक ही है कि तूने क्या बनाया, एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व कर दी, बट ओके उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी है, तूने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, एंड ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा साइज बड़ा रहता है, डेटा स्ट्रक्चर का साइज बड़ा रहता है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रहती है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना बड़ा है जितना बड़ा आपका डेटा स्ट्रक्चर, जितना बड़ा आपका प्रोग्राम की साइज, उतनी ही कम आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। ऐसा क्यों भला, व्हाई इज इट सो? Because time complexity is nothing but number of instructions that you are going to perform, and number of instructions are depend on number of inputs। तो जितना बड़ा आपका एरे रहेगा उतना ज्यादा वो नंबर ऑफ इनपुट स्टोर कर सकता है, तो उतनी आपकी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो दिस हाउ द थिंग्स वर्क। सो उसने कुछ प्रोस बता दिया, ठीक है भाई ये मेरे प्रोस है। तो वैभव ने कहा कि कॉन्स उससे ज्यादा है, जिस जिस टाइम पर अगर ठीक है तूने एक बहुत बड़ा एरे बना दिया और मेरे को सिर्फ 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो तूने कितने सारे वेस्ट कर दी मेमोरी, वो तो थोड़ा सोच, इतने मेमोरी पे वेस्ट करता है क्या भला, जहाँ पर मेरा 10 का काम था तूने 10 लाख का एरे बना दिया, ठीक है? या फिर 10 करोड़ का एरे बना दिया, and the user has only requirement to store 10 bytes of data। तो वहाँ पे मेमोरी बहुत ज्यादा वेस्टेज होगी इन दिस सोल्यूशन पर्टिकुलर, राइट। So this was the first approach, a layman approach, right? So what could be the another approach? Okay. What could be the another approach? So in a solution of two, in this solution,
how can we implement, how can we find the solution to our problem? प्रॉब्लम कौन सी, वो जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, डायनेमिक एरेज वाली, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस थिंग विद एन एग्जांपल। सो एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से आई हैव एरे एंड एयर ऑफ साइज 5, ठीक है। मेरे पास एक एरे है जिसकी साइज 5 है, ठीक है। पर इनिशियली मैंने उसके अंदर क्या डाल दिया, 0 0 0 0 0, 5 एलिमेंट्स आते हैं जिसके अंदर 0 0 0 0। अब मेरे को एक बात बताओ, इनिशियली ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, मैंने नहीं डाले, बाय डिफॉल्ट है, जैसे वेक्टर में। तो मेरे को चीज़ बताओ, आपको ऑलरेडी पता है कैपेसिटी और साइज में क्या फर्क रहता है, यू ऑलरेडी नो दिस, आई हैव डिस्कस दिस थिंग विद यू। बेसिकली अगर आपकी 1 लीटर की बॉटल है, ये बॉटल, ये आपकी बॉटल है, ठीक है। तो अगर इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर की, 1 लीटर, इसकी कैपेसिटी इज ऑफ 1 लीटर and the water stored inside this is of half liter। तो जो आपके इसके अंदर, इस बॉटल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है ना, दैट इज नथिंग बट योर साइज। और जो इसकी टोटल कैपेसिटी है कि इसके अंदर कितना पानी मास सकता है, दैट इज नथिंग बट योर कैपेसिटी, ठीक है। इफ आई हैव एन एरे समथिंग लाइक दिस जिसकी साइज है 5 और उसके अंदर मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट्स डाले, तो इसकी साइज क्या होगी, कैन एनीवन टेल? What will be the size of this array? 3, 3. 3. Capacity? 5. 5. Right. So you got the first, right? Okay, let's move on. ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या रिकमेंड करें कि व्हाट इज द साइज एंड व्हाट इज द कैपेसिटी इन दिस एग्जांपल? 5. हाँ, मैंने आई विल लाइक टू स्पेसिफाई दिस, आई हैवंट इंसर्टेड दिस, लेट मी स्पेसिफाई दिस अगेन। व्हाट इज द साइज एंड व्हाट इज द कैपेसिटी? ओके, इसका ही बता दो मेरे को, यहाँ पे डोंट फोकस ऑन दिस, यहाँ पे बताओ क्या साइज है, क्या कैपेसिटी है। Size 5. इसके अंदर मैंने कुछ अभी डाला नहीं, तो साइज 5 होगी। Capacity Size 0, Capacity 5. साइज 0 size, capacity 0. ठीक है, एब्सोल्युटली 0 साइज, कैपेसिटी 5। ये चीजें आपको आगे जाके काम में आएगी, सो दैट्स व्हाई आई एम हाइलाइटिंग दिस थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है कि लेट्स से अभी मैं इस एरे के अंदर एलिमेंट्स डालते जाता हूँ, पुश बैक, पुश बैक, पुश बैक, पुश बैक, पुश बैक। अभी एरे के अंदर चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए, चालू हो जाएगी, ठीक है। लेट मी इरेज द लास्ट टाइम, इरेज द लास्ट टाइम, मैंने सिर्फ 4 एलिमेंट्स डाले, ठीक। तो एरे के अंदर अभी क्या प्रेजेंट होगा, inside my array the elements will be, there will be 5, there will be 2, there will be 3, there will be 2, okay. On the similar hand, what will be the size of my array now? 4. And what will be the capacity? 5. 5. 5. इस चीज को याद में रखना, आपको ये अभी बहुत बेसिक लग रहा होगा, बट जो आपको पूरा का पूरा वेक्टर है ना, उसकी बैक एंड की प्रोसेस ऐसी ही होती है, ओके। As soon as I add the 5th element, okay,
फिफ्थ एलिमेंट जैसे मैं ऐड करता हूँ ना, यहाँ पर आपने फिफ्थ एलिमेंट ऐड कर दिया। अब होता क्या है पता है क्या? नाउ टेल मी, आपकी जो साइज और कैपेसिटी है वो क्या इक्वल हो जाएगी? विल दैट बिकम इक्वल? Yes. इट विल बिकम इक्वल। जैसे ही आपकी साइज और कैपेसिटी इक्वल होती है, क्या होता है? यू एक्चुअली क्रिएट अ न्यू एरे। आप क्या करते हो? एक न्यू एरे बनाते हो। अब न्यू एरे के अंदर आप क्या करते हो? यू बेसिकली add all the previous elements in a new array। आप ये सारे एलिमेंट्स आपके नए एरे के अंदर ऐड करते हो। 3 4 5 and increase the size, okay? And you increase the size by a certain number, आप उस एरे की साइज इंक्रीज करते हो, ठीक है? लेट्स से यू इंक्रीज इट बाय 5, फॉर नाउ यू इंक्रीज द साइज बाय 5। तो बचे कुछ एलिमेंट्स की जगह पे क्या रहेगा? 0 0 0, ठीक है? बचे कुछ जितने भी आपके एलिमेंट्स है ना, इस जगह पे क्या रहेगा? 0 0 0 0 0। ये आपका नया एरे बन गया। और आपने ये जो पुराना वाला एरे था ये डिलीट कर दिया, इसको मेमोरी से हटा दिया। अभी आपका न्यू एरे। अभी आप फिर से इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो। 7 8 9 10 और 6 भी रहा, 6 पे ऐड कर दिया। तो क्या होगा? ये जितने भी आपकी, तो इनिशियली जब यहाँ पे 0 0 0 0 0 था इनिशियली, तो मेरी साइज कितनी थी यहाँ पे? जब मैंने इसको नए एरे के अंदर कॉपी किया तो व्हाट वाज माय साइज इनिशियली? यहाँ पे देखो 5 5। और व्हाट वाज माय कैपेसिटी? 10. 5 कैपेसिटी 10 हो गई ना? हेलो, yes कैपेसिटी 10 हो गई, राइट? क्योंकि मैंने इंक्रीज किया ना, एज देखो सर्टेन अमाउंट नंबर से मैंने कैपेसिटी को इंक्रीज किया, राइट? तो कैपेसिटी क्या हो गई मेरी? 5 + 5 10 हो गई, राइट? और फिर उसके अंदर मैंने फिर से 5 एलिमेंट्स ऐड किए, 6 7 8 9 10 फिर से ऐड किए। अब क्या होगा? फिर से एक सर्टेन अमाउंट से मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर से सर्टेन अमाउंट से मेरी क्या बढ़ जाएगी? कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी बढ़ना मतलब जब भी मेरा जो यहाँ पर अगर मैंने इसके अंदर 6 7 8 9 10 डाला, मतलब फिर से मेरी साइज और कैपेसिटी इक्वल होगी। मैंने एक न्यू एरे बना दिया, आई हैव क्रिएटेड अ न्यू एरे। और न्यू एरे के अंदर क्या होगा? बेसिकली जो इनिशियल एलिमेंट्स थे सारे के सारे वो कॉपी हो जाएंगे ऐसे के ऐसे, और मेरी साइज फिर से 5 से बढ़ जाएगी। 1 2 3 ऐसा हो गया, और फिर से एट द एंड साइज 5 से बढ़ गई, ठीक है? अब फिर से क्या होगा? यहाँ पे साइज 10 होगी, कैपेसिटी बढ़ के 15 हो जाएगी, और ये प्रोसेस चलते जाएगा। ये सेकेंड अप्रोच था। जी, मैं जो आपको फर्स्ट सेकेंड अप्रोच बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअली में हुए हैं। सब पे डायनामिक एरेज डायरेक्टली नहीं बने, ये सारे उसके प्रोसेस है, ठीक है? दिस आर ऑल द प्रोसेसेस दैट हैव केम अपॉन, दिस इज द हिस्ट्री दैट वी आर बेसिकली गोइंग। तो ये सेकेंड अप्रोच था इस तरीके का, ठीक है? अब इस अप्रोच के भी कुछ ना कुछ क्या है, प्रोज एंड कॉन्स है। अब वो क्या है भाई? ओके, एक चीज तो इसमें जो हो रही है, they will agree कि as compared to the first approach, as compared to the first approach, इसमें less memory waste होगी, less memory waste, ठीक है? less memory waste। और एक और था जो मैंने बीच में स्किप किया, एक और अप्रोच था जिसके अंदर क्या हो रहा था? अगर मेरी 5 साइज का एरे है, ठीक है, आई हैव अ 5 साइज एरे, ठीक है, तो एरे भर गया पूरा का पूरा, 5 से भर गया। तो एक और अप्रोच आया था बीच में, जिसके अंदर फिर आप क्या करते हो? एक नया एरे बनाते हो जिसके अंदर ऑलरेडी 1 2 3 4 5 ऐड कर दिया, और एक जगह बढ़ा दी। फिर एक और एलिमेंट्स ऐड किया, 6 एलिमेंट ऐड किया मैंने, छठवां एलिमेंट ऐड किया। फिर से एक नया एरे क्रिएट किया जिसकी साइज 7 थी, फिर से एक नया एरे क्रिएट किया जिसकी 7 8 थी 9 थी 10 थी। तो एक और अप्रोच था, बट इस अप्रोच का मेजर ड्रॉबैक क्या था पता है क्या?
दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक। टेरेबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कितने बार आप एरे को कॉपी कर रहे हो भाई, कितनी फॉर लूप लगाने पड़ेगी इस चीज को करने के लिए, उसकी टेरेबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इवन द previous approach that we saw, that also had a terrible time complexity. ठीक है? Can anyone tell me, अगर मेरे पास in the previous example, the example which I have shown just now, ठीक है ना, जहाँ पर मेरे पास n number of elements थे और मैंने उसी साइज का array बना दिया, तो initially what was the time complexity? and मेरे पास एक fixed number था. I have a number as let's say 5. मेरे पास 5 साइज का array था और मैंने उतनी साइज का array बना दिया. तो what is the time complexity over here? Big of अरे क्लास फिर से बंद हो गया था. One. बिग ऑफ वन, एब्सोल्युटली बिग ऑफ वन. अभी जैसे ही मैंने 5 एलिमेंट्स उसके कंप्लीट हो गए, ये 5 एलिमेंट्स आर फिल्ड अप. नाउ मैंने क्या नेक्स्ट अप्रोच बताया कि अब अगर उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स ऐड करने, लेट्स से मेरे को 6 ऐड करना है, तो उसकी साइज 1 से बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली. एक साइज बढ़ जाएगी. फिर अगर आप 7 ऐड करोगे, फिर 1 से बढ़ जाएगी. और 1 से कैसे बढ़ रही है, ये एरे कंप्लीटली न्यू एरे के इसमें कॉपी हो रहा है. दिस एरे इज गेटिंग कॉपीड इन अ न्यू एरे, इसकी साइज हो जाएगी 6. फिर आपको 7 ऐड करना है, तो एक और नया एरे क्रिएट होगा जिसकी साइज हो जाएगी 7. अगर फिर आपको 8 ऐड करना है, तो फिर एक और एरे क्रिएट हो जाएगा जिसकी साइज हो जाएगी 8. यू आर क्रिएटिंग अ न्यू एरे बेसिकली. You cannot modify this array. This array is a constant, traditional array. So you are creating new arrays. जिसकी टेरेबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉपी पेस्टिंग ज्यादा लग रहा है. अभी इस वाले अप्रोच में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कैन एनीवन टेल? देखो इनपुट क्या दे रहा हूँ मैं, 1 1 इनपुट दे रहा हूँ और एरे की साइज 1 1 से बढ़ रही है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? इज देयर अ लीनियर डिपेंडेंसी? Big of n. एग्जैक्टली, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ, एज सिंपल एज दैट. ठीक है. तो ये रहे हमारे दो बेसिक अप्रोच जो कि इनिशियली डेवलपमेंट के टाइम बनी थी. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ था, आफ्टर दिस विल एबल टू कवर द क्लास टुडे. आफ्टर दैट क्या हुआ, फंडायल कैपेसिटी वर्सेस साइज. इसके बेसिस पर हमारा जो वेक्टर है ना, वो निकल कर आया. अब कैसे आया, उन्होंने क्या किया बताया क्या, उन्होंने क्या किया, लेट सपोज आपको आपने एक एरे बना दिया, एरे ऑफ साइज 5. ठीक है. तो इनिशियली उन्होंने क्या किया, एक एरे बना दिया साइज 5 का, जिसके अंदर 0 0 0 डाल दिया. ठीक है. जो पहले अप्रोच में देखा था हमने वैसा ही कुछ, तो भी सेम स्टार्टिंग का अप्रोच उनका वैसा ही. ठीक है. तो 0 0 0 डाल दिया. पर हमको पता है पहले अप्रोच में क्या हो रहा था, हम न्यू एरे क्रिएट कर रहे थे. सेकेंड अप्रोच में बेसिकली, पहले अप्रोच में तो हमने बहुत बड़ा एरे क्रिएट कर दिया था स्टार्टिंग में, तो उसको अवॉइड किया हमने, छोटा सा एरे बना दिया 5 साइज इनिशियली. ठीक है. अभी अगर उसके अंदर आपको एरेज ऐड करना है, सेकंड अप्रोच में क्या किया था हमने, न्यू एरेज क्रिएट किए. अब इस अप्रोच में क्या किया हमने, न्यू एरेज क्रिएट करने के बजाय उन्होंने क्या किया, अगर अगर आप इसके अंदर कुछ और ऐड करते हो तो वो साइज एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स टेक एन एग्जांपल. इनिशियली यू क्रिएटेड एन एरे, एक एरे बनाया आपने. ठीक है. तो इनिशियली इसकी साइज क्या है, 0. ठीक है. फिर उसके अंदर क्या किया आपने, पुश बैक. इनिशियल साइज इज 0 एंड कैपेसिटी इज व्हाट? Have I specified the size over here? No. So what will be the capacity? By default array की size और capacity 0 रहती है. वेक्टर की, सॉरी बेसिकली वेक्टर की. तो कैपेसिटी इज 0 ओवर हियर एंड इनिशियल साइज इज आल्सो 0. ये जावा के अंदर 10 रहती है, बट सी प्लस प्लस के अंदर इट इज 0. ठीक है. रिमेंबर दिस. आपने पुश बैक किया, लेट्स सपोज 1, तो यहाँ पर आपका एरे है, उसके अंदर आपने 1 डाल दिया. तो कैन एनीवन टेल कि व्हाट विल बी द साइज एंड कैपेसिटी नाउ?
What will be the size? साइज 1 होगी. Capacity? कैपेसिटी भी 1. Okay, तो करेंगे capacity भी 1. एक और पूछता है 2. इसके अंदर 2 आ गए. अभी बोलो साइज कितनी होगी? साइज 2. साइज 2. कैपेसिटी 2 होगा. कैपेसिटी भी 2 होगी. हाँ. ओके, कैपेसिटी भी 2. अभी लेट सपोज मैंने ऐड किया है 3. 9. दोनों का 3. ओके, दोनों का 3. ऐसे नहीं होगा. ठीक है, दिस विल नॉट हैपन. द साइज विल बिकम 3, बट जो आपकी कैपेसिटी है ना वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है. मतलब जब आपका साइज 0 रहता है ना, when your size is 0, the capacity is 0. When your size becomes 1, the capacity becomes 1. When your size becomes 2, your capacity is 2. When your size becomes 3, your capacity becomes 4. When your size becomes 4, your capacity is 4. When your size becomes 5, your capacity becomes 8. When your size becomes 6, your capacity becomes 6. When your size becomes 7, your capacity becomes 8. When your size becomes 8, capacity is 8. When your size becomes 9, your capacity becomes 16. When your size becomes 10, your capacity is 16. When your size becomes 11, your capacity is 16. When your size becomes 12, your capacity is 16. When your size becomes 13, your capacity is 16. When your size becomes 14, your capacity is 16. When your size becomes 15, your capacity is 16. When your size becomes 16, your capacity is 16. When your size becomes 70, what will be the capacity? 20. 32. Now, when my size becomes 32, my capacity is 32. When my size becomes 33, what will be my capacity? 64. 64. समझा कैसे पढ़ रहे हैं? अभी मैंने आपको वो चीज याद आ रही है, Yes. जब आपकी साइज इज इक्वल्स टू कैपेसिटी, तब आपकी कैपेसिटी किससे इंक्रीज हो रही है? एक्सपोनेंशियल. ये सेम फंडा है वेक्टर के अंदर. वेक्टर के अंदर सेम फंडा है, कैपेसिटी वर्सेस साइज. देखो यहाँ पर साइज 0, कैपेसिटी 0, साइज 1, कैपेसिटी 1, साइज 2, कैपेसिटी. यहाँ पर क्या हो गया? साइज और कैपेसिटी सेम हो गया. ये बढ़ गया ना भाई, कैपेसिटी डायरेक्टली बढ़ गया, 4 हो गया. यहाँ पर फिर से 4 हुआ, मतलब सेम हुआ कैपेसिटी और साइज. बढ़ गया ना भाई, 8 हो गया. फिर यहाँ पर फिर से 8 8 होगा, कैपेसिटी और साइज सेम हो गया. नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? 16 हो गया. यहाँ पर फिर से क्या हो गया? साइज और कैपेसिटी सेम सेम हो गया. बढ़ गया ना भाई, 32 हो गया. यहाँ पर फिर से क्या हुआ? कैपेसिटी और साइज सेम हो गया भाई, 64 हो गया. समझा कैसे बढ़ रहा है? 64 के बाद क्या होगी? कैपेसिटी. नेक्स्ट कैपेसिटी विल when your when what it will be 1. So I hope this thing is clear and this is how the vectors work. अभी मैं आपको इसका एक practical demonstration दिखाऊंगा. ठीक है? I'll show the practical demonstration for this. Then the things will be much more clear. ठीक है? ठीक है. So let me create another vector of n and its data type is vector of type n. तो इसका नाम देते हैं वेक्टर. इसके लिए कुछ साइज डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर. लेट्स यूज अ फॉर लूप
or 8 is equals to 0 and should be less than 1 and plus plus. तो मैं इसको वन भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर ट्वेंटी तक गपचुप चलना फिर एरर मत देना, पहले प्रिकॉशन ले लो। एंड इनिशियली आई वुड लाइक टू प्रिंट वेक्टर की साइज क्या है। What is the size of vector? I want to print it initially. Let's name it also. Size of vector. और उसके बाद capacity of vector, ठीक है ना। और वेक्टर डॉट कैपेसिटी से हम कैपेसिटी को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या करूँगा, मैं एक वन बाय वन मेरे एरे के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करते जाऊँगा, ठीक है। सो आई कैन जस्ट keep on adding elements inside my vector. Equals to हम ऐसा कर सकते हैं, शायद नहीं ऐसा, जैसा कर सकते हैं। ये तो मैंने क्या किया, बेसिकली एक वेक्टर बनाया, इसका डेटा टाइप है इंटीजर, साइज एज सच मैंने स्पेसिफाई नहीं की। मैं एक लूप चला रहा हूँ 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। जिसके पहले लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियली आई एम ट्राइंग टू प्रिंट द साइज ऑफ द वेक्टर यूजिंग दिस साइज फंक्शन, और उसके बाद मैं कैपेसिटी प्रिंट कर रहा हूँ यूजिंग द कैपेसिटी फंक्शन। और उसके बाद मैं वन बाय वन एक एक एलिमेंट्स मेरे वेक्टर के अंदर ऐड करते जा रहा हूँ, चेक करने के लिए हाउ माय साइज एंड कैपेसिटी आर ग्रोइंग। सबसे ये क्या, size of vector is 0 and capacity is also 0. तो भी गलत हो रहा है बस। Okay, I can do something like this. Back dot push back यूज करते हैं ना। ओके, मैंने बेसिकली इसकी जगह पे क्या कर दिया, पुश बैक यूज कर दिया, मतलब एक एक एलिमेंट मेरे वेक्टर के आखिरी में जाकर ऐड हो जाए। और क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, आई को ऐड कर रहा हूँ, मतलब 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 320 तक एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ मेरे वेक्टर के अंदर, नथिंग मोर देन दैट। और नाउ इट शुड रन। हाँ जी, रन हो रहा है। तो यू आर एबल टू सी, लेट मी जस्ट run this. Initially size of vector is 1 and capacity is also 1, okay? Size of vector should be 0 initially. Okay, yeah, it is 0. Why? First it showed 1, now it is showing 0. Okay, that is the thing. The size of vector is 0 and capacity is also 0. Okay. Then you have size increased to 1 and capacity also increased to 1. Then you have size increased to 2, capacity also increased to 2. Then you have size increased to 3, and guys you are able to see capacity increased to 4. फिर size increased to 4 and capacity was also increased to 4. मतलब size और capacity जैसे सेम हो रहे हैं, तो कैपेसिटी वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, तो साइज 5 हो गई, कैपेसिटी 8 हो गई। अब जैसे मेरी नेक्स्ट टाइम पर साइज और कैपेसिटी 8 हो जाएगी, अगेन माय कैपेसिटी विल बिकम 16। सिमिलरली जब भी मेरी कैपेसिटी 16 होगी और साइज भी 16 हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़कर 32 हो जाएगी। इज इट क्लियर? Yes. सबको क्लियर है? Yes. Easy, right? So this is how the background things are working inside the vector.
I hope you were able to get the gist of it. And tomorrow we'll also try to see this like practical implementation of really creating a vector. This is how it actually works, but let's see what the things goes. So that was all for today. I actually wanted to give a brief introduction to why the first thing is why we use vector and what are the basic things, declaration, initializing, different ways of initializing, some basic methods. Then we saw a bit about capacity, size, then we saw about this how this evolution of vectors actually happened from a normal traditional vector. What were the basic things that were initially there, came in picture, and then how they got modified. Okay? तो now you are able to see कि वेक्टर का जो एक्चुअल में सिनेरियो वर्क होता है कैसे वो डायनेमिकली वर्क होता है तो जैसे जैसे हम उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड ऑन करते रहते हैं वैसे वैसे उसकी साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ती है ठीक है so I hope this thing is clear and you will be able to answer this thing if somebody asks you. So that was it for today's session. I hope you got it. Any doubt? Gifts. Any doubt till this point? Okay, हाँ gifts का किसने बोला gifts का right? Okay, gifts. Let me show you this. Um, okay, let me first check it. ये order भी कर दिया वैसे gifts के साथ. But so, and these gifts are basically based on like your suggestions only. You only suggested us कि headphones वगैरह ये किस things are. तो हमने उसी के basis पर बुलाए हैं सारे gifts. We just opened it. Give me a second. Hmm. I'm not able to see this screen. Gross activity. Attendance. This is for assignment. Okay. Screen नहीं दिख रही. I know, my screen is not visible. Let me first open it. And the headphones which we was like, which we have decided are basically at the shop. So let's see the days of it. We have still 10 days now. So we can order it on later point. Okay. Yeah. So let me share the screen.